Hello friends, good morning all of you. I hope you all are well at home. So safe from you from the corona and watch this video and take online classes at home. So let's start. Dear friends, in economics in the ninth class, in the term second, only one chapter will be coming in your final exam. Only the chapter one is poverty. And poverty from the book, NCERT book, we already completed in the class. So in the online classes I will tell you some main concept from the books. So today main concept is the main reasons of poverty are stated below. First we understand what are the reason of the poverty. In next video I will show the what types of the measure adopted by the government or from our side we can do better to remove the poverty. So dear students, you also can note down in your fair notebook all types of all are the reasons of the poverty, but point to point and 2 and 3 times you learn it and maintain the notes also on these reasons of poverty. Or whenever you feel sir this point I have doubt, the same time just you give me WhatsApp, sir in this point I have doubt, otherwise through the Zoom channel we can discuss to each other. So dear friends, shall we start? The topic is the main reasons of poverty. From the point to point we will understand this concept. The first reason, it's foremost and the most major reason of the poverty. Maximum time always we discuss in the class, increase the rate of rising population explosion also we can say कि बढ़ती हुई population जनसंख्या in the last 45 years population has increased at the hopping rate. होपिंग होता है बहुत हार गति से बढ़ने वाली, जैसे होपिंग बहुत स्पीड से बढ़ने वाली जो ग्रोथ रेट होती है उसको क्या कहा जाता है होपिंग रेट. The 2.2 the rate is show that is a 2.2. This is a 2.2 rate per annum. फर्स्ट साल 2.2 बढ़ती है. An average of approximate 17 million people are added every year. कितने हो जाते हैं? 17 people every year add हो जाते हैं. Which raise the demand for the consumption. देखो population बढ़ती है तो obviously they will raises their demand for the consumption of goods. They will also want to utilize of goods लेना चाहते हैं. They want to सर्विस लेना चाहते हैं. वो ट्रांसपोर्टेशन में भी आना चाहते हैं. वो एजुकेशन सेक्टर में भी आना चाहते हैं. वो दैट एम्प्लॉयमेंट भी करना चाहते हैं. मार्केट में दे वांट टू परचेज द गुड्स भी खरीदना चाहते हैं. मतलब सभी जगह पर अगर कहीं पर भी दैट एनीवेयर यू कैन फाउंड व्हाट आर द प्रॉब्लम व्हाई वी आर मेकिंग ए क्यू. हम बैंक में जाते हैं वहां पर भी हमें क्या बनानी पड़ती है? एक लंबी लाइन बनानी पड़ती है. रीजन क्या है? पीछे ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी पीछे बहुत लंबी क्यू है ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन. हम रोड पे चलते हैं, कहीं पे घूमने चले जाते हैं, मनाली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कहीं पर भी रीजन क्या आता है? लॉट ऑफ द ट्रैफिक रीजन पॉपुलेशन. हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे भी बेड पे मतलब यहाँ पे भी सभी पर्सन दिखाई देते हैं. रीजन क्या है? पॉपुलेशन. मार्केट में जाते हैं वहां पर भी क्या दिखाई देते हैं? पॉपुलेशन. जस्ट टू टेल मी दैट वन एक सिंगल जगह एक ऐसी बताइए जहां पर पॉपुलेशन नहीं है पाई जाती, जहां पर भीड़ क्राउडेड नहीं पाई जाती. दिस आर द रीजन ऑफ पॉवर्टी. रीजन क्या है? पॉपुलेशन. डिमांड ज्यादा है, मांगने वालों की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है वस्तुओं की? वो हर जगह क्या पाई जाती? कम पाई जाती है. सो वी आर मेकिंग द लाइन. हम क्या बना लेते हैं? वहां पे एक क्यू बना लेते हैं और क्यू जब होती है तो डिमांड ज्यादा रहती है और वहां पर वस्तु कम रहती है. सो दैट इंक्रीजेज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स. वस्तु की प्राइसेस क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट हियर, the next reason increase less productivity in agriculture. It was the first point, increase rate of rising population. Now the second point here, less productivity of agriculture. Dear students, ये हमने माना कि चलो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन ये भी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। वी नो वेरी वेल, क्या वो डिमांड हम पूरी कर पाते हैं? नहीं कर पाते। आज से अगर हम 200 साल पुरानी बात करें, 100 साल पहले की बात करें, तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर में, जो खाने के लिए जो सामान था, जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी थी, जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट में आती थी, वो चीजें नहीं बढ़ी। और नहीं बढ़ने की वजह से लोग भूखे रहते थे, और भूखे रहने का ही नाम क्या कहा जाता है? गरीबी कहा जाता है, पॉवर्टी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर में लेस प्रोडक्टिविटी क्यों थी? सभी को पता है क्या रीजन था? प्रिमिटिव, कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो मेथड था एग्रीकल्चर करने का, जो मेथड था वो बहुत क्या था? प्रिमिटिव था। जो खेती होती थी हमारे वहाँ पे कैसे होती थी? बहुत ही पुराने तरीके से खेती, छोटे छोटे खेत होते थे, उनमें ट्रैक्टर नहीं होता था, लेकिन बाद में ट्रैक्टर आया। साथ में इरिगेशन, जो इरिगेशन था सिंचाई का, वो कोई भी सुविधा नहीं थी, अच्छी नहीं थी। जब पानी नहीं मिलेगा खेतों में तो बताओ फिर कहाँ से प्रोडक्टिविटी आएगी? तो रीजन क्या रहा कि एग्रीकल्चर में लेस प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। इंक्रीज लेवल इज लो, सब डिवाइडेड एंड फ्रेगमेंटेड, कि खेत एक बार यहाँ पर होता था किसी का, तो खेत एक बच्चे का यहाँ पर होता था, इस तरीके से। देखो यहाँ फ्रेगमेंटेड, इसको क्या बोलते हैं? सब डिवाइडेड थे। और दूसरा वर्ड क्या था? फ्रेगमेंटेड थे। फ्रेगमेंटेड का मतलब टुकड़ों में बटे हुए थे। कब खेती यहाँ करे या यहाँ करे, कहाँ जाए? होल्डिंग, लैक ऑफ कैपिटल, ये वर्ड क्या है? लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? कि खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए? सीड्स चाहिए बोने के लिए, इसको करने के लिए, साथ में इसको कटाई करवानी है, साथ में जुताई करवानी है, साथ में हमें ट्रैक्टर का यूज भी करना है, साथ में हमें इरिगेशन, हमें सिंचाई भी करवानी है। फॉर दैट ऑल सभी चीज़ों के, इसको काटने के लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए भी है नीड आल्सो ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। इन चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कम से कम एटलीस्ट मिनिमम कैपिटल तो हमारे पास होनी चाहिए। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? कि कम से कम इतनी पूंजी होनी चाहिए कि वी कैन बी परचेज, हम क्या कर सके? ट्रांसपोर्टेशन कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे वस्तु को भेज सके। तो लैक ऑफ कैपिटल की वजह से भी हम क्या नहीं कर पाते? ट्रैक्टर सभी थोड़ी खरीद पाते थे। अब की बात मत सोचो, हम बात पूरे बैक साइड से कर रहे हैं, क्या से 50 साल पहले की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं होती थी, पूंजी नहीं होती थी। खेती किसके साथ होती? खेती करने के लिए सबसे पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद 1 साल इंतजार करना पड़ता है, देन आफ्टर यू कैन बी गेट मनी। यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, खेती करने का तरीका था जो पुराना मेथड था, पूरे साल होल ईयर केवल हम एक ही फसल क्या करते थे? बोते थे, और उसी फसल की ही वेट करते रहते थे, कब ये होगी, कब ये ट्रांसपोर्टेशन होगी, कब ये मंडी में जाएगी। मंडी में जाने के बाद जो आड़ती हैं, मीन जो ब्रोकर्स हैं, जो ट्रेडर हैं, दे विल परचेज इट, उसको वो अच्छे दामों पे खरीदे। यहाँ तक एक लंबा सफर तय करना पड़ता था, मीन दैट 1 ईयर, 1 साल का लंबा सफर तय करना पड़ता था। इस दौरान हो सकता है बीच में क्या हो जाए? बाढ़ आ जाए, हो सकता है अकाल आ जाए, ड्रोट आ जाए, तो सारी की सारी फसल किसान की जो लिया हुआ लोन है फसल बोने के लिए, वो सारा का सारा बेकार हो जाए। तो नाउ इट वाज रियली दैट माइजर सिचुएशन फॉर द फार्मर, कि मेथड थे जो ट्रेडिशनल मेथड पुराने होते थे, इलिटरेसी पीपल क्या होते थे? अनपढ़ होते थे, मोटा लोन ले लेते थे महाजन से, उसके ऊपर क्या लगता था? इंटरेस्ट लगता रहता था। दे द वेरी रीजन फॉर द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री इज द फैक्टर। एंड मैक्सिमम, एक दूसरी बात भी है कि मैक्सिमम जो लोग होते थे अनपढ़ होते थे, एजुकेशन सेक्टर नहीं होते थे, सारे के सारे कहाँ चले जाते थे? सभी के सभी एग्रीकल्चर में चले जाते थे। तो इट वॉज द रीजन ऑफ द लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर।